Okay, a boy, do they know how to make a car? Was his explanation. He had it very clear. And वो कहते हैं कि मुझे ये कार ये जो ये कंपनी पसंद है, ये कार मुझे पसंद है, जो अपनी जो स्टॉक्स को ऑन करना, मेरे नाम पे करना, वो मुझे पसंद है। एंड वो उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत। ओके, next paragraph है, the specific heuristics that Amos and I studied provide little help in understanding how the executive came to invest in Ford stock, but a broader conception of heuristic now exists, which offers a good account. An important advance is that emotion now looms much larger in our understanding of intuitive judgments and choices than it did in the first. The executive's decision would today be described an example. The affect heuristics, where judgments and decisions are guided directly by the feelings of liking and disliking with a little de- deliberation, deliberation or reasoning. When confronted like the problem, choosing a chess move or deciding whether to invest in a stock, the machinery of intuitive thought does the best it can. And if the individual has relevant expertise, she will recognize the situation and see intuitive solution that comes to her mind is likely to be correct. This is what happens when a chess master looks at a complex position. A few moves that immediately occur to him are all strong, and when the question is difficult and skilled solution is not available, intuition still has a shot. An answer may come to mind quickly, but it is not an answer to the original question. The question that executive faced, should I invest in Ford stock, was difficult, but the answer to the uneasier and related question, do I like Ford cars, can readily to his mind and determine his choice. This is the essence of intuitive heuristics. When faced with a difficult question, we often answer an easier one instead, usually without noticing the substitution. Okay, इस पैराग्राफ में है कि एक क्वेश्चन आप ऐसे कह सकते हो, क्या तुम स्टॉक फोर्ड कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऐसे क्वेश्चन पूछने से बदले आप ऐसे कह सकते हो, तुम्हें क्या फोर्ड कार पसंद है? तो ये ना, जो ट्रू ह्यूरिस्टिक, जो आपका जो चाहने का जो डिजायर चाहना, आप जो पसंद, उसे एक्सपर्ट इमर्ज करेगा आपके अंदर से। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ है, द स्पॉन्टेनियस सर्च फॉर एन इंट्यूटिव सॉल्यूशन समटाइम्स फेल्स, neither expert solution nor a heuristic answer come to mind. In such cases, we often ourselves switching to a slower, more deliberate and effortful form of thinking. This is slow thinking, little and fast thinking includes both variants of intuitive thought, the expert and the heuristic, as well as the entirely automatic mental activities for of perception, of memory, the operations that enable you to know there is a lamp on your desk, or the retrieve the name of capital name of Russia. The another paragraph जो कि लास्ट है इस टॉपिक का, नोट एन इंट्रोडक्शन, सॉरी। ओके, लास्ट में और एक भी है, the distinction between fast and slow thinking has been explored by many psychologists over the past 25 years for reasons that I explain more fully in the next chapter. I describe mental life by the metaphor of two agents called System 1 and System 2, which respectively produce fast and slow thinking. I speak of the features of intuitive and deliberate thought as if they were traits and the deposition of two characters in your mind. In the picture that emerges from recent research, the intuitive system I1 is more influential than your experience tells you, and it is the secret author of many of choices and judgments you make. Most of this book is about working of system 1 and the mutual influences between it and the system 2. ओके, लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी इसके बाद और एक
What comes next? Okay, I think इसकी और प्रिंटिंग नहीं हुई है इसके बाद। ओके, इसके बाद प्रिंटिंग नहीं हुई है, होनी चाहिए थी बट हुई नहीं है। बट और जितना है उसे हम रीडिंग करेंगे। तो लास्ट में यह है कि स्लो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो क्यों दिया गया है इस बुक को। इसका बुक का जो टाइटल है क्यों थिंकिंग फास्ट एंड स्लो क्यों। कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत इजी होगा अंडरस्टैंडिंग करने में। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर ने बोला आज हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ के आए होगे, हम कल पूछेंगे। तो कल क्लास आए, टीचर आए, तो टीचर ने क्वेश्चन शुरुआत की। तो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहने से पहले आपने आंसर दे दिया, इसे कहते हैं फास्ट थिंकिंग। एंड उसके बाद अनदर क्वेश्चन ने टीचर ने पूछा, उस क्वेश्चन शुरू हुआ एंड खत्म भी हुआ, लेकिन आप सोच रहे हैं कि क्या कहना है, ये आंसर हुआ होगा ना ये ए होगा ना बी होगा। ओके, ऐसे सोच रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है क्वेश्चन को जो आंसर को याद करने के लिए। इसे कहते हैं स्लो थिंकिंग। ओके, ये था आज के लिए एंड बहुत टाइम ले लिया एंड सॉरी। जो इसकी जो पहली वीडियो ना उसे मैं ऊपर उसे भी अपलोड करूँगा, लेकिन एडिट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज है ना बहुत स्लो है, तो एडिट करना मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ओके, मैं ऐसे ही मैं इसे अपलोड करूँगा। एंड जाने से पहले मेरे मन के बारे में बताना चाहूँगा। आज मेरा मन कर रहा था खाने के बाद रीडिंग करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि खाने के बाद रीडिंग नहीं हो सकेगा। उसके बाद मेरा अपना जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन मेरा मन कर रहा था नहीं हो जाएगा। तो मैंने इसकी विपरीत जाकर मैंने इस बुक का रीडिंग करने के बाद जब मैंने देखा कि 2 पेज हैं, तो मैंने 2 पेज ख़त्म कर लिया। ख़त्म करने के बाद देखा कि जो 20 का जो पेपर वो प्रिंटिंग मिस्टेक होने के बाद वो 20 में पेज एक छूट के गैप रह गया एंड नेक्स्ट पेज में उसकी प्रिंटिंग है। तो मेरे मन में ऐसे आया कि भाई ये रख दे, यहीं पे स्टॉप कर दे। लेकिन मेरे अंदर से और एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं, इसे कंप्लीट करके ही रखना है एक टॉपिक को पूरी, ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैंने पूरी कंप्लीट किया मेरे मन के विपरीत जाकर एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार मेरे मन के विपरीत जाकर मैंने कुछ किया। ओके, एंड थैंक यू सबको एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को, मेरे माता मेरे पिताजी को एंड मेरे सूर्यदेव को एंड स्पेशली कृष्णा जिन्होंने और एक मौका दिया कुछ सीखने का, कुछ एक्सपीरियंस करने का। ओके, एंड थैंक यू फॉर यस्टरडे के लिए भी थैंक यू। एंड जो मेरे सराउंड्स में है, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे भाई बहन, जो भी सबको मेरा थैंक यू। एंड जो मेरे ज़िंदगी में है उनको भी थैंक यू, जो चले गए हैं मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा के चले गए हैं मेरे ज़िंदगी से, तो उनको भी थैंक यू। एंड जो आने वाले हैं मेरे ज़िंदगी में उनको भी थैंक यू एडवांसली। ओके, इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। ख्याल रखना अपना एंड ध्यान रखना एंड कीप स्माइलिंग। ओके, स्माइल इज़ इम्पोर्टेंट।